Hello bachcho, welcome you all to this session of polynomials. So last time we have learned about what are polynomials. Polynomials क्या है वो सीख लिया था, उसकी zeros किसे कहते हैं वो सीख लिया था, ये भी पता चल गया था कि coefficient किसे कहते हैं. So what is the topic for today? So आज का topic है, this is lecture 2 and the topic is relationship between the zeros and coefficients. तो पहले एक बार फिर से ये देख लें कि zeros क्या है और coefficients क्या है. So देखते हैं, इन द पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. अब इसमें वेरिएबल कौन सा है? x इज अ वेरिएबल. And what are these a and b? A is the coefficient of x square, b is the coefficient of x, and c is known as the constant term. Okay, so these things we already know, that what is variable, what are coefficients of the variable, and what are zeros. If I put px equal to 0, what is px? This polynomial. Say when I put px equal to 0, I will get some value of x. That value of x which makes this polynomial equal to 0 is known as the zero of polynomial. So we know what are zeros, we know what are coefficients. Now the objective of this lecture is to find the relationship between zeros and the coefficients. So we'll begin with the linear polynomial. So what is linear polynomial? The standard form of linear polynomial is ax plus b. So now to find the zero of this polynomial, what we do? We put this polynomial, this is the polynomial, we put this polynomial equal to 0. Means we will equate ax plus b to 0. So this becomes x is equal to minus b upon a. So this minus b upon a is a zero of polynomial. जो भी given polynomial है, here our given polynomial was ax plus b, and because this is the standard form, journal form, तो journal form में या standard form में हम क्योंकि ax plus b लिखते हैं, where a is the coefficient of x and b is the coefficient of b is the constant coefficient, है ना. तो we can write कि we always know that the zero of polynomial, zero of any linear polynomial, that is equal to minus coefficient of minus constant coefficient divide by coefficient of x. Okay, so here we can say this is the relationship of zero and coefficient of a linear polynomial. So now the second thing is, second type of polynomial is quadratic polynomial. So firstly we will write the standard form of quadratic polynomial. So the standard form of quadratic polynomial is ax square plus bx plus c, that we already know ना. अब ये भी हमें लास्ट एक्सरसाइज से पता है कि अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, मतलब एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 will have maximum 2 zeros. Any polynomial of degree n will have maximum n zeros. उससे कम हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती. तो हमने मान लिया कि इसकी 2 zeros हैं, और वो 2 zeros क्या हैं? Say the 2 zeros are alpha and beta. So if these are 2 zeros, that means we can write the standard form of polynomial as k, k एक कोई constant ले लिया, multiplied by x minus alpha into x minus beta. जो फैक्टर्स थे वो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए, तो स्टैंडर्ड फॉर्म को हम इस तरह से लिख सकते हैं. अब ये लिखने के बाद हम क्या करें, इसको सिर्फ
सिंप्लीफाई कर लो, मतलब खोल दो इसको अभी, तो वो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा बीटा। अब देखो यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर की कोई टर्म है, एक्स की वाली कोई टर्म है और एक कांस्टेंट टर्म है, और इसमें भी वही चीज है। तो नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल कंपेयर द कोफिशिएंट्स। सो कंपेयरिंग coefficients of variables, comparing coefficients will simply write constant coefficient constant के साथ कंपेयर होगा, x स्क्वायर का coefficient x स्क्वायर के साथ इक्वेट होगा, और x का coefficient x के साथ इक्वेट होगा, x के coefficient के साथ इक्वेट होगा। तो दैट मीन्स दिस विल गिव यू कि a इज इक्वल टू k, b इज इक्वल टू यहाँ पे k मल्टीप्लाइड बाय माइनस ऑफ एल्फा प्लस बीटा, सो माइनस के इंटू एल्फा प्लस बीटा, ये आ गया, और c इज इक्वल टू के इंटू एल्फा बीटा। तो जब हमने इन दोनों के कंपेयर किए कोफिशिएंट्स, तो ये आंसर आए हमारे पास, ठीक है ना। अब देखो व्हाट इज बी, एल्फा प्लस बीटा, तो एल्फा प्लस बीटा इज एक्चुअली द सम ऑफ जीरोस। So the sum of zeros is equal to, ये माइनस के उधर चला जाएगा, तो दिस विल बिकम माइनस बी अपॉन के, एंड व्हाट इज के, के इज एक्चुअली ए, तो वी मे पुट हेयर ए। ए क्यों पुट किया, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। तो ए कोफिशिएंट है, के तो कांस्टेंट है, तो वो तो हमें पता नहीं ना कि एग्जैक्टली क्या वैल्यू है, तो हमने सम ऑफ जीरोस को कोफिशिएंट्स की फॉर्म में पुट किया, एंड दैट इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। सिमिलरली द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मीन्स अल्फा इंटू बीटा, दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे सी के केस में मिल रहा है हमें, सी के केस में क्या है, अल्फा बीटा विल बिकम इक्वल टू सी अपॉन के, और k को हम पुट कर लेंगे a, तो दैट मीन्स दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस विद द कोफिशिएंट्स, ठीक है। सो वी हैव फाउंड द रिलेशनशिप ऑफ जीरोस विद द कोफिशिएंट्स फॉर अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो यही है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में यूज होनी है, ठीक है। क्यूबिक का हम बात करेंगे, पर पहले इसकी थोड़ी सी एग्जांपल सॉल्व कर लें, ठीक है। सो फर्स्टली विल बी यूजिंग दीज फैक्ट्स। सो फर्स्ट एग्जांपल इज फाइंड द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज गिवन एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। मतलब अभी जो हमने रिलेशनशिप पढ़ा था, वो वाला रिलेशनशिप वेरीफाई करना है कि हाँ सच में इसमें भी अगर हम जीरोस फाइंड करें, फिर देखें वो सम ऑफ जीरोस वही आ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वही आ रहा है। चलो ये चेक करते हैं। ओके देन, सॉल्यूशन, फाइंड द जीरोस। ओके, द पॉलिनोमियल इज गिवन x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, so we need to find alpha and beta. So how we can find this, इसको फैक्टराइज करें और अल्फा बीटा की वैल्यू आ जाएगी, तो इसको फैक्टराइज करते हैं पहले। So for factorizing we'll be using the splitting term. Splitting term में 5 into 2 10 हो जाएगा, and that will give you 7. तो चलो ये हमने कर दिया split, x square plus 5x plus 2x plus 10. Okay, then this is equal to x into x plus 5 plus 2 into x plus 5. That means the factorization of the polynomial is x plus 5 and x plus 2. So here we have factorized the polynomial. Now what are the zeros? To make this polynomial equal to 0, either x plus 5 is equal to 0 or x plus 2 is equal to 0, only then this polynomial will become equal to 0 ना। तो यही दो केसेस हैं। इस केस में x की वैल्यू फिर -5 होगी, और इस केस में x की वैल्यू -2 होगी। दैट मीन्स द जीरोस ऑफ
polynomial are, so zeros of the given polynomial are -5 and -2. ओके, तो -5 -2 2 zeros होगी. अब इनको ऐड करके देखें. So what is alpha plus beta? Alpha plus beta is equal to -5 -2 is equal to -7. Now see, we have studied that alpha plus beta is equal to minus b upon a. So let's check what is minus b here. B is 7. So minus b is equal to -7 upon a. Here we don't have anything. That means coefficient of x square is 1. So that means this is equal to -7. So this has been verified that alpha plus beta is equal to -7. Also minus b upon a is -7. So that means this verifies the relationship between the sum of zeros and the coefficients. Now check for product of zeros. So alpha beta is equal to -2 into -5 is equal to +10. And what is c upon a? C upon a is equal to 10 upon 1. So this is also equal to 1. So hence we have verified the relationship between zeros of the polynomial and its coefficients. Fine. Find the zeros of polynomial. Now the polynomial given is x square minus 3. So now the solution. Firstly, you need to find the zeros and then we'll be verifying the relationship. Can you find the zeros of this polynomial? So it is better if we use the identity x square, a square minus b square. So a square minus b square is equal to a plus b into a minus b and this is the factorized form. तो सिंपली इसको भी हम इसी फॉर्म में लिख लेंगे. सो एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस √3 इंटू x minus √3. So the zeros are minus √3 and plus √3. Okay. Now sum of zeros. Zeros are alpha and beta. So sum of zeros is equal to minus √3 plus √3 is equal to 0. And what is b? Here you have, in this you don't have any coefficient of b. Coefficient of x is not present and the sum of zeros is actually minus of coefficient of x divided by coefficient of x square, which is normally written minus b upon a. So here coefficient of x is not there. That means coefficient of x is 0. So that means as b is equal to 0, that means minus b upon a is also equal to 0. So hence we have verified that alpha plus beta is equal to minus b upon a. Now next thing is alpha beta. What is alpha beta? Minus √3 multiplied by plus √3. So √3 multiplied by √3 will give you 3 and here you have the negative sign. Now check c upon a. C upon a is minus 3 upon 1. So this is also equal to minus 3. So hence verified the relationship. Fine. This is easy now. Let's check the next question. It is find the quadratic polynomial. Oh, so इस टाइम वो क्या कह रहा है कि quadratic polynomial आप बताओ जब क्या है sum and product of whose zeros are -3 and +2 respectively. Means हमें इस बार क्या दिया हुआ है, alpha plus beta is equal to -3 and alpha beta is equal to +2.
and what is the relationship? The standard form of the equation was हमने किया था ना k into x square plus not plus minus alpha plus beta x plus alpha beta. So this was the equation. Here if we put alpha plus beta here at the place of alpha plus beta, the value I can put. So this will become k into x square minus alpha plus beta is minus 3. So this becomes plus 3x plus alpha beta is 2 plus 2. So assuming k is equal to 1, required quadratic equation is equal to x square plus 3x plus 2. अगर बाई चांस कुछ डिनोमिनेटर में होता, जैसे यहाँ पे लिखा होता 3/2, तो फिर हम क्या करते कि a को 2 ले लेते ताकि ये 2 कट जाए और हमें ऐसे सुंदर सी पॉलिनोमियल नजर आए. ठीक है. सो डिड यू अंडरस्टैंड कि हाउ यू विल अटेम्प्ट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस? अगर सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है, सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अगर वो ऑलरेडी गिवन है, तो आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करनी है, जस्ट ये चीज याद रखनी है, दिस वन. एक ये इक्वेशन है, बस इस इक्वेशन में आप नॉट इक्वेशन, ये एक एक्सप्रेशन है, सिर्फ इस एक्सप्रेशन में आप अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू पुट कर दो and you will get the expression, you will get the required polynomial. Fine. So next is, so अभी तक हमने जो पढ़ा है वो क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल के जीरोस और कोफिशिएंट्स का रिलेशन और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस और कोफिशिएंट्स का रिलेशन. अब अगर बाय चांस हमारे पास हो क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेते हैं और फिर उसके बाद उनके रिलेशंस फाइंड करेंगे. सो हाउ डू वी राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल, दैट इज a x क्यूब प्लस b x स्क्वायर प्लस c x प्लस d. So this is the standard form of cubic polynomial. Now comes the relation. Relation में क्या है, इसमें क्या होगा, कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगी, अगर डिग्री 3 है तो दैट मीन्स देयर वुड बी 3 नंबर ऑफ जीरोज मैक्सिमम, और अगर डिग्री 2 है तो 2 नंबर ऑफ जीरोज, 1 है तो 1 नंबर ऑफ जीरोज, दैट वी हैव ऑलरेडी डन, है ना. तो अब क्योंकि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 3, तो दैट मीन्स इट कैन हैव मैक्सिमम 3 जीरोज. अब उन 3 जीरोज के हम नाम रख लेते हैं अल्फा बीटा और गामा. ठीक है, अल्फा बीटा गामा 3 इसकी होगी जीरोस. नाउ कम्स द रिलेशनशिप. रिलेशनशिप देखो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होगा क्योंकि 3 है. अब रिलेशन साफ है, जैसे उसमें था माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी उसमें क्या था, एक्स का कोफिशिएंट, और ए क्या था, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्वाड्रेटिक में. इसमें भी ये यही है, सम में b अपॉन ए ही आएगा, माइनस ऑफ b अपॉन ए, और b अपॉन ए इस केस में लिखा जाए तो क्या है, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब. नाउ सेकेंड थिंग इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लिख लेते हैं अल्फा बीटा गामा. अल्फा बीटा गामा जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है वो क्या था, हमारे केस में था कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म. इसमें भी वही है, कांस्टेंट टर्म बाय हाईएस्ट डिग्री टर्म कौन सी है, ये वाली, और इसका कोफिशिएंट क्या है, a. अब इसमें क्या है, ये साथ में नेगेटिव आएगा. ठीक बात है. तो
इवन प्लेसेस पे जितने भी आप याद ऐसे कर सकते हो ना कि ये फर्स्ट प्लेस पे है टर्म, ये सेकंड पे, ये थर्ड पे और ये फोर्थ पे। जब जब इवन वाले यूज होने हैं तब तब साथ में लगेगा माइनस का साइन, और जब ऑड वाले यूज होंगे, पिछली बार हमने प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या पढ़ा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, c अपॉन ए। तो c अपॉन ए में c थर्ड नंबर पे है ना, तो वो पॉजिटिव आ गया था। अब इस केस में कांस्टेंट है ही चौथे नंबर पे, चौथे नंबर पे मतलब इवन प्लेस पे, इवन प्लेस पे है तो साथ में नेगेटिव साइन आएगा। ठीक बात है, तो ये हो गया। अब और क्या, काम तो इतना ही था ना वैसे, कि सम ऑफ जीरोस पता कर लो और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पता कर लो। तो सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस तो हम ऑलरेडी पता कर चुके हैं। अब नेक्स्ट क्या है, इसमें एक चीज और एडिशनल आ जाती है कि सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम, मतलब दो दो जीरोस लेके उनका सम करते जाओ। मतलब पहले दो जीरोस ली हमने अल्फा बीटा, फिर दो जीरोस ली बीटा गामा, और फिर अगली दो जीरोस ले ली अल्फा गामा, और इन तीनों का सम, मतलब इनके इंडिविजुअल दो दो के प्रोडक्ट्स और फिर उनका सम। सो दैट इज इक्वल टू, अब देखो b भी यूज हो गया, d भी यूज हो गया, और ये क्या है c अपॉन ए। c तीसरे नंबर पे है तो इसलिए यहाँ पे क्या है पॉजिटिव साइन। b दूसरे नंबर पे है, b के साथ नेगेटिव आया था, d चौथे नंबर पे है, वहां पे भी नेगेटिव आया था। तो बस ये चीज जो है ये रट्टा जरूर मार लेना है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस taken to sum of product of zeros taken two at a time that is equal to c upon a। ठीक है, चलो अब क्या करते हैं, in the next example we'll be using this fact। okay, and the question based on cubic polynomial is the example number 5. What he said, verify that 3 minus 1 and minus 1 upon 3 are the zeros of polynomial। पॉलिनोमियल गिवन है और ये कहा है कि ये तीनों वेरीफाई करो कि ये उसके जीरोस हैं इस पॉलिनोमियल के, एंड देन वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। जो हमने अभी रिलेशनशिप पढ़ा है फिर वो वाला रिलेशनशिप जो है वो वेरीफाई करना है। ओके, सो द सॉल्यूशन, we need to verify if this is the zero, say we are taking the first one, if this is the zero that means p3 will be equal to 0। so let's put 3 in the polynomial, so this becomes 3 into x cube means 3 cube minus 5 into 3 square minus 11 into 3 minus 3। so this is equal to 3 into 3 cube is 27 minus 5 into 5 square is 3 square is 9, then 33 minus 3, this is equal to 81 minus 45 minus 33 minus 3, I am writing it 36। okay, 36। now this is 5 plus 6 11 11 and here you have 81, so this is equal to 81 minus 81 is equal to 0। so as p3 is equal to 0, that means the remainder of the polynomial when x is equal to 0, ये रिमाइंडर थ्योरम आपने 9th क्लास में पढ़ी थी ना, तो एग्जैक्टली वो अप्लाई हो रही है इसमें। ठीक है, तो अगर 3 पुट करके रिमाइंडर 0 आ रहा है तो इसका मतलब जो है वो क्या है कि 3 x minus 3 is the factor of this polynomial, or you can say 3 is the zero of this polynomial। ठीक है, तो as p3 is equal to 0,
this implies 3 is a zero of given polynomial, or we'll write px. Okay, so similarly you will put the value -1 and -1/3 and will find the value of polynomial at those values. अगर वो 0 आ गया तो आपने कह देना कि हाँ जी ये 0 है, अगर नहीं आया तो कह देना है नहीं, दिस इज नॉट द 0। पर अब इस केस में डेफिनेटली ये तीनों 0 है ही है, ठीक है। तो बाकी दोनों जो है वो आप वेरीफाई कर लेना कि दीज आर 0। देन द नेक्स्ट थिंग इज वेरीफाई द रिलेशनशिप। तो जैसे हमने पहले किया था, पहले एक बार अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तीनों जीरोस को ऐड करके देखो। जीरोस तो उसने हमें पहले बता ही दी हैं, तो वहां से ही देख लेते हैं। -1/3, so taking 3 as LCM, so this becomes 9 minus 3, I should have done it before, 6 आ जाता, -1, so this is 5/3, so the sum of zeros is 5/3। so let's check, हमें फॉर्मूला क्या पता है कि सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू -b/a। देखिए माइनस बी क्या है, माइनस बी इज माइनस ऑफ -5, that means this will become +5, and a is 3, so we are putting it here. So we have verified that alpha plus beta plus gamma is equal to 5 plus 3, also b/a is equal to 5/3, that means this relationship is verified. Similarly you will verify the relationship alpha beta into beta gamma plus alpha gamma is equal to, what was the relationship, c/a, और थर्ड क्या था, alpha beta gamma is equal to -d/a, तो ये दोनों भी similarly you will verify. Fine. So in the next lecture we'll start the exercise 2.2. okay, so see you in the next lecture. Bye. ये सब कुछ जितना पढ़ा है उसे ध्यान से एक बार रिवाइज जरूर कर लेना, एंड देन स्टार्ट द एक्सरसाइज। आप भी एक्सरसाइज सॉल्व करो, और उसमें हो सकता है कुछ क्वेश्चन आपके डाउट्स में रह जाएं, तो नेक्स्ट वीडियो आपको पूरी कंप्लीटली देखने की जरूरत नहीं है, उसकी सीक्वेंस भी कोई बिगड़ी नहीं होगी। मैं 1-2 सीक्वेंस में ही सारे क्वेश्चन सॉल्व करूंगी, और आप वो पर्टिकुलर पोर्शन जहां पे आपको डाउट है सिर्फ वो वाला पोर्शन जो है वो वीडियो का देख लेना। मैं कुछ ऐसा नहीं करूंगी कभी भी कुछ भी स्टार्ट हो रहा है ना, तो फर्स्ट क्वेश्चन सबसे पहले उसके सारे पार्ट्स, फिर सेकंड क्वेश्चन, फिर उसके सारे पार्ट्स। आई विल बी डूइंग दिस द नेक्स्ट एक्सरसाइज इन द सिस्टमैटिक वे, ठीक है, सो दैट यू कैन इजीली फाइंड सर्च इन द वीडियो कि आपके वाला क्वेश्चन आपको कहाँ पे मिलेगा, ठीक है। चलो ओके देन, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।